Good morning. Okay then. So last time we have seen De Moivre's theorem and roots of unity, out of which De Moivre's theorem, as we know that it is cos theta plus I sin theta raised to n is equal to cos n theta plus I sin n theta. What does it mean? Power is gets converted, that is attached to the angle. Okay, so that is the De Moivre's theorem. We have also seen if you change the roles of sin theta and cos theta, the theorem is not valid. For example, sin theta plus I cos theta raised to n. This is not equal to sin n theta plus cos n theta. We have seen the example why it is not equal. Then we have seen what to be done in case the roles are interchanged. If roles are interchanged, you have to subtract the angle from pi by 2. We know that cos 90 minus theta is equal to cos theta and sin 90 minus theta is equal to cos theta. So therefore, we can always interchange the angle and then we can find the answer using De Moivre's theorem. So sin का अगर cos में convert करना है या cos का sin में convert करना है, you have to subtract the angle from pi by 2. Next is nth root of unity. This we will start now. Let me see. Okay. ठीक है. Who is this unknown user? Please unmute and say. Don't know, sir. Okay, then I will remove. Okay. Let's come back to the point nth root of unity. So complex number z is said to be nth root of unity if it satisfies the equation z raised to n is equal to 1. So as the name suggests, roots of unity, what does it mean? We have to take nth root of unity. Unity means 1. Okay. Therefore, the solution of equation z raised to n is equal to 1 is called nth root of unity. Now, how to obtain this nth root of unity? The process is very simple. First, you have to take the equation z raised to n is equal to 1. Right hand side, whatever is the right hand side, express it into the polar form. 1 का polar form क्या होगा? Cos 0 plus I times sin 0. Then as z raised to n is equal to this, you can always take z is equal to 1 by n roots to the both side. Okay. Now the problem with the division is whenever your power is in the integer, you don't have to worried about this particular conversion. But when your power is not an integer, for example 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, yeah, 5 upon 3, 5 upon 5. So what you have to do, you have to do just little modification. You know that cos and sine both are the function of 2 pi. So whatever value will get repeated after interval of 2 pi. Therefore, you can take 2 pi, 4 pi, 6 pi. If you add to the angle, your value does not change. So we will do little bit modification. Whatever is the angle, we will add this multiple 2k pi. Because cos and sine is the periodic function of 2 pi, the angle will not change. The value of cos
of 0 plus 2k pi is same as cos of 0. Sine of 0 plus 2k pi will be the same as sine 0, where k is an integer. And then we can apply the De Moivre's theorem. What does De Moivre's theorem says? Power will get attached to the angle. So therefore it is cos 2k pi upon n, sine 2k pi upon n, because power is 1 by n. So when you multiply with 1 by n, it is getting in the denominator. Now you can change the values of this particular thing. When you change these values, what do you get? You get different roots of unity. So let us take the example, concrete example, so that this concept of roots of unity will become familiar with you. The nth root of unity, first of all, it is denoted by omega, and for different values of k, we get n different roots of unity. And there is a connection between this nth root of unity. So first root, 1 is always root. Why it is 1 is always a root? 1 raised to n is equal to 1. So it is by default a roots of unity. Now what will happen? The first root of unity for k is equal to 1, we called it as omega, and this is called as primitive root of unity. What is omega 2? When you substitute k is equal to 2, substitute in the equation, you will get 2 into 2, 4, cos 4 pi by n and sine 4 pi by n. If you do this multiplication omega into omega, you will get the same root. So why it is so? Because here the modulus is equal to 1, and we know that angles, क्या होता है angle का? When you multiply two complex number, angle will get added. So 2 plus 2, 4, angle will get added and modulus gets multiplied. That is the result of complex number multiplication in polar form. Similarly again, omega 3 calculate karo. When you put k is equal to 3, you will get cos 6 pi by n plus I sin 6 pi by n. Again it is a, this omega is added 3 times. Omega into omega into omega, 2 pi plus 2 pi plus 2 pi. Therefore it is omega cube. आप कब तक जा सकते हो? k का लास्ट वैल्यू क्या है? n माइनस 1. सो ओमेगा n माइनस 1 क्या होगा आपका? cos, आपने k के जगह पे n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया and you got the value. This is nothing but you have added this 2 pi 2 pi 2 pi n minus 1 times. Therefore the power is omega raised to n minus 1. This is how you compute the nth root of unity. And the interesting fact is to check whether you are getting the correct answer or not. If you add all these values, 1 plus omega square plus omega cube up to omega n minus 1, you will get this sum is equal to 0. You will see that. सर इक्वेशन के इनिशियल स्टेज में k क्यों नहीं दिख रहा है? कौन सा? यही वाले सम में. हाँ, हमने क्या किया है k के लिए? क्या किया है? k इज ए इंटीजर. आपका जो इंटीजर है, आपने क्या किया? एंगल में ऐड किया है. मतलब क्या किया है? यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है कि एंगल आपका अगर 2 पाई डिग्री से रोटेट होता है तो आपका वैल्यू सेम रहेगा, बिकॉज वी वांट n वैल्यूज. अगर k नहीं लिया होता, आपको कितना वैल्यू मिलता? एक ही वैल्यू मिलता. बट अपने को पता है कि अगर स्क्वायर रूट लिया तो हमको कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे, 2 वैल्यू चाहिए. अगर क्यूब रूट चाहिए तो कितने वैल्यूज मिलने चाहिए आपको? 3 वैल्यूज मिलने. सो वैसे अगर नहीं मिलता, अगर के हम लोग इसमें के अगर ऐड नहीं करते 2k पाई, व्हाट यू विल गेट? 0 upon n, 0 upon n. That means you will get only the first value. You will not get the remaining values of n. And ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको आगे ले जा सकते. k का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है. अगर आपने n लिया तो क्या होगा? देखो, 2n पाई प्लस साइन 2n पाई अपॉन n. सो n विल गेट कैंसल, you will get the first value. So value क्या होंगे? रिपीट होंगे.
आपका ये जो साइकिल है k इज इक्वल टू 0 1 2 n-1 तक आपको सेम वैल्यूज मिलेंगे। अगर आपने n लिया तो क्या होगा, 2n पाई 2n पाई, सो cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई सेम एज cos 0, sin 2 पाई सेम एज sin 0, आपको सेम वैल्यू मिलेगा ओमेगा 0। n प्लस 1 लिया तो ओमेगा 1 मिलेगा, n प्लस 2 लिया तो ओमेगा 2 मिलेगा। सो ये वैल्यूज क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। आफ्टर दिस n-1 the values of this particular roots of unity will get repeated. Therefore, we are taking only up to n-1. Okay. यस तो सर। k क्यों लिया, क्योंकि हमको जितना रूट है उतने वैल्यू चाहिए। स्क्वायर रूट है तो 2 वैल्यू चाहिए, क्यूब रूट है तो 3 वैल्यू चाहिए, फोर्थ रूट है तो 4 वैल्यू चाहिए। वो कैसे होगा, k के वजह से होगा। ओके। यस सर। So let us take this particular example. यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड ऑल सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या है, आपको कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना है, z रेज टू 6 इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द प्रोसीजर, वॉट एवर इज द RHS कन्वर्ट इट इनटू अ पोलर फॉर्म। RHS को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या मिलेगा, cos 0 plus I times sin 0. Take 1/6 power both side, you will get z raised to 6 है तो यहाँ पे सिर्फ z बचेगा, you will get power 1/6। अगर मैंने डायरेक्टली पावर अप्लाई किया डी मोवियस थ्योरम से तो मुझे कितना वैल्यू मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा, बट मुझे कितना वैल्यू चाहिए, 6 वैल्यू चाहिए क्योंकि सिक्स रूट है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड एंगल टू k पाई, दिस इज अ कॉमन प्रोसीजर। ये क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि आपका वैल्यू जो है कॉस एंड साइन का 2 पाई इंटरवल पे रिपीट होता है और रिपीटेशन के वजह से हमको n वैल्यूज मिलते हैं। सो आफ्टर एडिंग दिस एंगल 2k पाई वी विल गेट पावर 1/6 अप्लाई करो, व्हाट यू विल गेट cos 2k पाई अपॉन 6 प्लस i टाइम sin 2k पाई अपॉन 6। और आपको कहां तक ले जाना है k को, k का वैल्यू ले जाना है 0 से 5 तक, 6 वैल्यू चाहिए ना आपको, 0 1 2 3 4 5। ओके। सो आप एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 0, क्या मिलेगा, ओमेगा 0 मिलेगा। सब्स्टिट्यूट 0, cos 0 प्लस i टाइम्स sin 0, दिस इज ऑलवेज अ रूट ऑफ द यूनिटी। देन apply k is equal to 1, put k is equal to 1 over here, क्या मिलेगा, anyone, 2 पाई बाय 6। हाँ, cos 2 पाई बाय 6 प्लस i टाइम sin 2 पाई बाय 6। अगर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos 4 pi by 6 plus I sin 4 pi by 6. ओके। सो आपने समझा, यू हैव टू पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k इन दिस इक्वेशन। k इज इक्वल टू 1 पुट किया, आपको क्या मिला, cos 2 पाई बाय 6 प्लस i टाइम 2 पाई बाय 6। अगर आपने इसको हाँ देना हम लोग। हाँ 2/6 मतलब क्या, 1/3, cos पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 क्या होता है, 1/2, sin पाई बाय 3 क्या होता है, √3/2। सो आपका वैल्यू क्या मिला, 1/2 प्लस 3/2 i। ओके। अभी देखो k इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया, क्या मिलेगा, ओमेगा 2 क्या मिलेगा, ये सब्स्टिट्यूट 1/1, आपने अभी बोला था cos 4 बाय 6 प्लस i sin 4 पाई बाय 6, मतलब क्या है, cos 2 पाई बाय 3 प्लस i टाइम्स sin 2 पाई बाय 3। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये 2 पाई बाय 3 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। यस, इट इज एग्जैक्टली 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव होता है एंड y का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो आपको सिर्फ
यहाँ पे साइन चेंज करना है, -1/2 प्लस 3/2। साइन का वैल्यू पॉजिटिव y एंगल पे और x का वैल्यू निगेटिव, बिकॉज इट इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। व्हाट इज k इज इक्वल टू 3? cos 6π/6 प्लस i sin 6π/6। सो कैंसिल करो, cos 6π cos पाई प्लस i sin पाई। क्या होगा? cos पाई क्या होता है? हाँ, cos पाई क्या होगा? 180 डिग्री ना। हाँ, कैसे करोगे? 180 डिग्री पे एंगल क्या होता है? cos n पाई इज इक्वल टू -1/n। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 1 है। sin n पाई इज इक्वल टू 0। सो cos n पाई -1/n विच इज इक्वल टू -1। cos का एंगल कैसे होता है? आपने सीखा होगा, n π/2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के लिए क्या होगा? 0 होगा। इवन मल्टीपल्स के लिए क्या है? -1/n। ओके, तो ये क्या होगा? -1 प्लस 0 टाइम्स i। सो i का कंपोनेंट चला जाएगा, सिर्फ क्या होगा? -1। ओके, नेक्स्ट क्या है? k इज इक्वल टू 4। k इज इक्वल टू 4 मतलब क्या है? सब्सटीट्यूट इन द एंगल 2k पाई। k के जगह पे 4 डालो, क्या होगा? 8π/6 साइन 8π/6। सो एंगल क्या होगा? cos 4π/3 साइन 4π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री, राइट? 60 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना डिग्री होगा? 240 डिग्री। 240 डिग्री मतलब एंगल किस में गया? कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। देयरफॉर -1/2 एंड यहाँ पे -√3/2। सो एक ही हमने वैल्यू निकाला है, 1/2 एंड √3/2, और उसको ही हम लोग चेंज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ओके, व्हाट इज k इज इक्वल टू 5? आपके पास कैलकुलेटर है तो डायरेक्टली आप cos का एंड साइन का वैल्यू निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। 10π/6 एंड साइन 10π/6। सो क्या होगा? 5π/3 साइन 5π/3। अगेन 5/3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री इंटू 5 300 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 300 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा निगेटिव होता है? x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है। सो आपको जो रहेगा 1/2 और 3π√3π/2, सो वही रहेगा, सिर्फ एक एंगल पॉजिटिव, दूसरा एंगल निगेटिव। क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या होगा? 60 डिग्री से रोटेट हो रहा है। सो आपने देखा कि कितना, मतलब ये है कि आपका अगर सब लोग ऐड करो, ये सब जो भी वैल्यूज आए वो ऐड करो, 1/2 -1 एडिशन 0, ये जो सेकेंड वैल्यू है और ये जो फोर्थ का वैल्यू है, सॉरी k इज इक्वल टू 1 का वैल्यू है, k इज इक्वल टू 4 का वैल्यू है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे +1/2 यहाँ पे -1/2 है, +√3/2 है, यहाँ पे -√3/2 है। सो ये 0 मिलेगा। k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 4। सिमिलरली k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 5। यहाँ पे माइनस है, -1/2, और यहाँ पे +1/2 है, यहाँ पे +√3/2 है, यहाँ पे -√3/2 है। सो ये 2 एंड 5 का एडिशन 0 मिलेगा। यस और नो? तो आप पूरा ऐड करो, ऑल द 6 रूट ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। कैसे 1 मिलेगा? 1 प्लस -1 0 मिलेगा। सेकेंड वाला जो वैल्यू है और जो फोर्थ वाला वैल्यू है उसको ऐड करोगे तो 0 मिलेगा। थर्ड वाला वैल्यू है और ये जो लास्ट वाला बट वैल्यू ये है उसको रूट ऐड ऑफ यूनिटी है ना, तो 1 मिलना चाहिए ना सर लास्ट में। नहीं, रूट्स ऑफ यूनिटी को अब ऐड करोगे आप सबको तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा।
रूट्स ऑफ ओके सर। यूनिटी मतलब क्या, उनका अगर आपने वो पावर लिया, मतलब किसी भी इसका W1 का पावर रेस टू 6 लिया तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। सेकेंड, इसका भी अगर आपने 6 पावर लिया तो 1 मिलना चाहिए। फोर्थ, ये जो आपने रूट्स निकाला है उसका पावर 6 किया तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना 1 चाहिए। मिलना है। हाँ, और अगर ऐड किया तो 0 मिलना चाहिए। ओके, ओके सर। तो अगर पावर लिया तो आपको 1 मिलना चाहिए, ऐड किया तो आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। और एक बात याद रखो कि ये जो है वो कॉन्जुगेट में अपेयर करते हैं। मतलब अगर इसका कॉन्जुगेट क्या है, 1/2 प्लस रूट 3/2 आई। व्हाट इज द कॉन्जुगेट, 1/2 माइनस रूट 3/2 आई। सो आपको कहीं तो मिलेगा 1/2 माइनस रूट 3/2 आई, मतलब 1 k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 5। ये दोनों वैल्यू क्या है, conjugate of each other. What about second and fourth? Are they conjugate? Yes. यस सर। हाँ, सो आपको तीन चीजें देखनी है। उनका पावर 6 किया तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उनका सबका एडिशन किया तो आपको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और थर्ड चीज क्या देखनी है कि कॉन्जुगेट में अपेयर हो रहे कि नहीं। जब भी आपका राइट हैंड साइड रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट में अपेयर होंगे। अगर वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब अगर यहाँ पे 1 प्लस आई होता है तो हमको कॉन्जुगेट नहीं मिलते हैं। ओके, सो लेट अस टेक सर दिस एग्जांपल फर्दर। k इज इक्वल्स टू 2 भी -1/2 है, k इक्वल्स टू 4 भी -1/2 है। हाँ, तो आपका जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो सिर्फ इमेजिनरी कंपोनेंट का साइन चेंज होता है। क्या होता है, a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस आई बी। सो a का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ b का साइन चेंज होगा। ओके राइट, सर। यस सर। हाँ। अगर दोनों का साइन चेंज होता है तो क्या होता है, वो निगेटिव होता है। W1 एंड W4 आर निगेटिव ऑफ ईच अदर। आप देख सकते हो इस एंगल में, मैंने ये पूरा, आप ये देखो कि ये जो आपने अगर प्लॉट किया तो हर एक का एंगल कितना होगा, फर्स्ट रूट क्या है 1, और जो सेकेंड रूट है आपका जो मिला 1/2 प्लस रूट 3/2 आई, इसके बीच में एंगल कितना होगा, π/3 होगा। ओके, नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है वो अगेन π/3 आपने मूव किया सर्कल पे तो आपको नेक्स्ट वाला वैल्यू मिलेगा। अगेन π/3 मूव किया तो आपका कितना डिग्री कवर होगा, 180 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, and this is 300 degree. So you can see that all the values will lie. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Excuse me, sir, voice is not audible. सर शायद आपका माइक म्यूट हो गया है। सर म्यूट हो गए। हेलो, हेलो, यस सर। हेलो। हाँ यस सॉरी, सर। माय नेटवर्क इज वेंट आउट। यस सर। जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट मेरा पीसी को कनेक्ट होने दो, फोन से कनेक्ट हुआ है।
ओके ओके, सो वेयर वी, मतलब कहाँ तक आपने मेरा आवाज आया? हाँ सर, आप यही बता रहे थे, ये 180 डिग्री। हाँ हाँ समझा मुझे, एक मिनट। हाँ, यस लेट मी। ठीक है। हाँ, सो फर्स्ट वाला वैल्यू जो है इट इज 1। आपने यहाँ पे देखा k इज इक्वल टू 0 का 1, हमेशा कोई भी इसका जो वैल्यू है 1 होता है। और आपका जो प्रिमिटिव रूट होता है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट वाला वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करते हो तो आपका एंगल क्या बना, 60 डिग्री बना। सो जो एंगल फर्स्ट वाले में होता है ना, वही एंगल रिपीट होगा। मतलब π/3 एंगल है तो π/3 रिपीट होगा। π/3 मतलब 60 डिग्री। मतलब पहला रूट क्या मिलेगा, सर्कल के इसमें आप अगर क्लॉक अज्यूम करो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री ट्रैवल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos 60 प्लस i sin 60 विच इज नथिंग बट द फर्स्ट रूट। और 60 डिग्री ट्रैवल करोगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या मिलेगा आपको, 120 डिग्री पे वैल्यू मिलेगा। ओके, सर एंटी फिर क्लॉकवाइज। हाँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप और 60 डिग्री ट्रैवल करो तो कितना ट्रैवल होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स एग्जैक्ट अपोजिट। एग्जैक्ट अपोजिट कितना होगा, 1 का -1। फिर से 120, सॉरी, फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री, 180 प्लस 60 240। 240 डिग्री पे आपको ये वैल्यू मिलेगा, -1/2 प्लस √3/2 i। और फिर 60 डिग्री ट्रैवल करोगे, 240 प्लस 60 300। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल 1/2 माइनस √3/2। सो ये जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है 1/2 प्लस √3/2 i, एंड जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है, ये दो वैल्यूज क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे आपको रिफ्लेक्शन लेना है। यस सर, सेकेंड एक्स एक्सिस साइन। पे आपको मिरर लिया तो आपको जो भी रिफ्लेक्शन मिलेगा वो क्या है, आपका कॉन्जुगेट है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मिरर रखा तो ये वाला वैल्यू है -1/2 प्लस √3/2 i। इसको एक्स एक्सिस पे मिरर रखा तो क्या मिलेगा, -1/2 माइनस √3/i। ये जो वैल्यू है वो क्या है, कॉन्जुगेट है। सो आपको देख सकते हो कि आपका कोई भी, अगर आपने रियल इक्वेशन सॉल्व किया, मतलब रियल इक्वेशन मतलब क्या, ऑल द कोएफिशिएंट आपका पॉलिनोमियल का अगर रियल नंबर है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कभी कभी रियल होते हैं तो उसका क्या कुछ कॉन्जुगेट लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम रियल नंबर होता है। ओके, तो आपको ये चेक करना है कि रूट्स ऑफ यूनिटी पूछा तो कॉन्जुगेट में रूट्स अपीयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ओके, बट ये जरूरी नहीं है आपको कि हर बार वो रूट ऑफ यूनिटी ही पूछे। ठीक है, सो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या है, ऑल दिस रूट्स विल लाइज ऑन यूनिट सर्कल। व्हाट इज यूनिट सर्कल, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 1। आपने देखा 6 रूट, ऑल दिस 6 रूट लाइज ऑन दिस यूनिट सर्कल, जो रेड में सर्कल दिख रहा है उस पे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, द nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ रेगुलर एनगॉन। मतलब क्या है कि आपका अगर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है तो उसमें कोई एनगॉन बनेगा नहीं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा। सिक्स रूट ऑफ यूनिटी है इसलिए क्या बना है अपना, हेक्सागन बना है। अगर आपने रूट्स को ज्वाइन किया एक दूसरे के साथ तो आपको क्या मिलेगा, हेक्सागन, जो यहाँ पे ब्लू में है। सो दैट इज टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, कि सभी nth रूट किस पे होते हैं, यूनिट सर्कल पे होते हैं। ठीक है, और अगर आपको nth रूट ऑफ यूनिटी है तो वो क्या बनाएंगे, रेगुलर एनगॉन। ठीक है, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है,
आपको सिर्फ रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना तो आएगा, बट अगर आपको कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर का बोला है, फॉर एग्जाम्पल हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i करके दिखाया था। कैसे किया था? a plus ib is equal to square root of x plus iy, then we take the square, a plus ib square is equal to x plus iy, and उससे फाइंड किया था। सिमिलर वे से हम लोग थर्ड रूट्स भी निकाल सकते हैं। a plus ib is the third root of 1 minus i, then we can solve that equation, a plus ib का क्यूब लेंगे, वही स्टेप से हम कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, रूट्स ऑफ यूनिटी का जो हमने किया था वैसे ही हमने ये लाइन पे आना चाहिए। अभी आपने क्या बोला, मैंने क्या बोला था, रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होते हैं, राइट। बट यहाँ पे यूनिटी नहीं है तो कॉन्जुगेट आए इसका जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी और कॉम्प्लेक्स नंबर का बोला, यूनिटी का नहीं बोला, तो कॉन्जुगेट नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। टू फाइंड थर्ड रूट्स ऑफ यूनिटी, थर्ड रूट आपको कॉन्जुगेट मिलेंगे, बट अभी आपको क्या है, थर्ड रूट्स ऑफ 1 माइनस i, सिर्फ यहाँ पे 1 होता तो कॉन्जुगेट मिलता, सम 0 मिलता, सब कुछ मिलता, बट यहाँ पे वो सब रिजल्ट वैलिड नहीं है, ओके। सो ये चीज हमेशा याद रखना, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रूट निकालने बोल रहे, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, z³ इज इक्वल टू 1 माइनस i। सो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड को पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैलकुलेट करो क्या मिलेगा, you will get the root is equal to √2 एंड थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ y by x, tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा, -π/4, ओके। सो मैंने बोला था आपका पॉइंट अगर फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स का जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेटर से मिलता है वो लेना है, ठीक है। अगर आपका वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या करना है, पाई से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई में वो वैल्यू ऐड करना है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था यहाँ पे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या है, tan इनवर्स ऑफ y by x है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या है, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y by x है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y by x है। तो ये सिंपल टेक्निक्स है जिससे आप tan इनवर्स का वैल्यूज और थीटा का वैल्यूज मैच कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। सो आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अभी रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने r का वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं किया था। क्यों नहीं कैलकुलेट किया था, क्योंकि रूट्स ऑफ 1 का तो आपको पोलर फॉर्म पता है, 1 कहाँ पे बिलोंग करता है, 1 लाइज एट x एक्सिस, सो एंगल क्या होगा, x एक्सिस के साथ 0 एंगल होगा, राइट। सो उसके लिए पोलर फॉर्म थीटा वगैरह कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1 का मॉड्यूलस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा 1, और एंगल क्या होगा 0। सो डायरेक्टली हमने लिखा था cos 0 प्लस i sin 0, बट अगर कोई और पॉइंट है तो उसका आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। सो 1 माइनस आई इज इक्वल टू √2 cos π/4 माइनस i sin π/4। सो ये कन्वर्जन हुआ। अभी इसको क्या करना है, z³ में सब्स्टिट्यूट करना है, z³ इज इक्वल टू दिस, टेक 1/3 रूट ऑन बोथ द साइड, ओके। जब आप 1/3 लेते हो तो आपको कितने वैल्यू चाहिए, एनीवन? अगर क्यूब रूट लेना है तो कितने वैल्यू चाहिए आपको, 3 वैल्यू चाहिए क्यूब रूट के, बट अगर मैंने डायरेक्टली 2k पाई नहीं ऐड किया तो मुझे एक ही वैल्यू मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऐड दिस कंपोनेंट 2k पाई इन द एंगल, ओके, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 into 2 is 8, 8k plus 1 in pi upon 4। तो ये आपका वैल्यू हो गया एंगल का। अभी इस पे डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करो। डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करना है मतलब क्या है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है एंगल को। सो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या मिलेगा 12। तो आपका आंसर क्या होगा, ये जो पावर है
ये पावर 1/3 इट इज अटैच टू द एंगल एज वेल. √2 मतलब क्या है? 2⁻². 2⁻² इंटू 1/3 कितना होता है? 2⁻1/6 और √3 1/3. सो ये पावर एंगल को भी अटैच होगा और मॉड्यूलस को भी अटैच होगा. सो जब हम लोग पावर एंगल को अटैच करेंगे तो क्या होगा? we will take this into the angle. 1/3 will be multiplied in the angle, so that 8k plus 1 pi upon 12. Similarly यहाँ पे क्या होगा? 8k pi upon 12. So 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया. Similarly √2 को पावर 1/3 लिया तो 1/6 हो गया. Okay. So put the values of k as 0, 1, 2. 3 वैल्यू चाहिए आपको. Start with 0. तो k इज इक्वल टू 0 लिया. k इज इक्वल टू 0 का क्या आएगा? पुट द वैल्यू k इज इक्वल टू 0. 8k 0 हो जाएगा. ओनली k बचेगा. cos π/12 माइनस i sin π/12. k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ω1 मिलेगा विच इज इक्वल टू 2⁻1/6. अगेन अप्लाई करो. k इज इक्वल टू 1. 8 प्लस 1 इज 9. 9 π/12 एंड साइन 9 π/12 मतलब क्या? 3 π/4 एंड 3 π/4. एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो. कुछ कुछ वैल्यूज का एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ तक भी छोड़ा तो चलेगा मुझे. ये आगे मैंने कैलकुलेट किया. ये जो पार्ट है वो नहीं किया तो भी चलेगा. 2⁻1/6 माइनस 1 माइनस आई. ये नहीं किया तो भी चलेगा. आपको सिर्फ इतना वैल्यू निकालना है कि 9 π/12 और लास्टली आपको वैल्यू पुट करना है k इज इक्वल टू 2. k इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा? cos 17 π/12 माइनस आई साइन 17 π/12. अभी यहाँ पे ये जो RHS था वो रियल नंबर नहीं था. RHS अगर रियल नंबर नहीं है तो आपको ये जो वैल्यूज है वो कॉन्जुगेट में अपियर नहीं होंगे. दिस आर नॉट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. एवरी टाइम इट इज माइनस साइन. ओके. सो आपका वो जो प्रॉपर्टी है यूनिटी में आपको कॉन्जुगेट मिलते हैं वो कब मिलते हैं? जब आपका राइट हैंड साइड रियल नंबर होता है तब मिलते हैं. अगर वो इमेजिनरी नंबर है तो कॉन्जुगेट नहीं मिलेंगे. यस बोलो. सर यूनिटी में 6 वैल्यू लेना पड़ता है और इधर पे 3 वैल्यू. नहीं, पावर पे डिसाइड करता है. यहाँ पे कितने रूट्स मिले हैं? थर्ड रूट्स. थर्ड रूट मतलब 3 वैल्यू. वहां पे 6th रूट चाहिए आपको. आपको कितने रूट्स पूछे यहाँ पे? फाइंड 6th रूट ऑफ यूनिटी. सो आपको कितने वैल्यू चाहिए? 6. ओके. तो जो भी पावर पूछा है, अगर 5th रूट ऑफ यूनिटी पूछा तो कितने पावर मिलेंगे? 3 मिलेंगे. ओके. सो डिपेंड ऑन पावर यू विल गेट द वैल्यूज. ओके. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिटी का निकाल सकते हो, आप कोई भी वैल्यू का निकाल सकते हो. ओके. ओके. इज दैट क्लियर? ओके. यस सर. सो दिस इज अबाउट द यूनिटी. सो जस्ट अब एक बार चेक करो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. इस पे आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे. फॉर एग्जांपल दिस, ये क्वेश्चन देखो. इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई √3⁻16 अपॉन √3 माइनस आई ⁻17. ये कैसे करोगे आप? एनी आइडिया हाउ यू विल डू दिस? डी मोवियस थ्योरम का ही पार्ट है. आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में, और फिर क्या करना है? डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करना है. कोई भी चीज में आपको पावर दिखा तो आपको कौन सा थ्योरम याद आना चाहिए? डी मोवियस थ्योरम. ओके. यहाँ पे क्या है? ये टाइप का सम हमने कर दिया है. वहां पे 7 था, यहाँ पे 8 है. राइट. 1 प्लस आई √3⁸ प्लस 1 माइनस आई √3⁸. पावर है मतलब डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करना है. पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर डी मोवियस थ्योरम लगाना है. ये बाद में देखेंगे ये कैसे करते हैं लॉग ऑफ कॉस थीटा. बट यहाँ पे 5th रूट ऑफ यूनिटी पूछा है. सी इन क्वेश्चन M दे हैव आस्क्ड यू 5th रूट ऑफ यूनिटी मतलब कितने पावर चाहिए आपको? z⁵ इज इक्वल टू 1. तो एंगल क्या बनेगा? 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करो, कितना एंगल मिलता है?
72 डिग्री। सो 72 डिग्री पे आपको हर एक रूट मिलेगा। ये भी सेम है, 1 + i⁻10 1 - i⁻10। कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म एंड देन अप्लाई द डी मोविस थ्योरम। सो डी मोविस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर बाकी कुछ नहीं किया कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपको परफेक्टली क्या करना है, डी मोविस थ्योरम और रूट्स ऑफ यूनिटी, आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। बाकी पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना वो सब रिवाइज होता है डी मोविस थ्योरम में। और एंगल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये जो हम अभी व्हाट इज द सर्कुलर फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शंस। सो लेट अस सी there are two types of function. One is called as circular function. Circular function को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं, ओके। और हाइपरबोलिक फंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, वी विल सी। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी नो दैट e⁻ix इज इक्वल टू व्हाट, cos x प्लस आई टाइम्स sin x। इसको क्या बोलते हैं, ऑयलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। सिमिलरली अगर i के जगह पे माइनस आई होता तो क्या होता, e⁻ix इज इक्वल टू cos x प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ -x। यहाँ पे -x होता, cos -x प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ -x, बट cos ऑफ -x क्या होता है, cos ऑफ x, एंड साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x। सो आपने जो माइनस एंगल लिया है वो कॉस के इसमें साइन को अफेक्ट नहीं करेगा, बट साइन के इसमें साइन को अफेक्ट करेगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, ओके। सो एंगल विल रिमेन पॉजिटिव, बट यू कैन टेक दिस माइनस साइन आउटसाइड ऑफ द इक्वालिटी, जिसको क्या बोलते हैं, इसीलिए कॉस को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, साइन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। What is the property of even function? नेगेटिव का वैल्यू भी सेम एज पॉजिटिव का वैल्यू। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन, यू कैन टेक द आउटसाइड साइन, माइनस साइन यू कैन टेक आउटसाइड, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x। सो यू कैन अप्लाई दैट प्रॉपर्टी, यू विल गेट दिस इक्वेशन 1 and 2। अभी दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, e⁻ix प्लस e⁻ इज इक्वल टू 2 cos x। तो ये जो ऐड करेंगे तो सेकेंड पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर यू कैन राइट cos x इज इक्वल टू व्हाट, ये फॉर्मूला जो 3 में है वो याद कर लो। cos x क्या है, e⁻ix प्लस e⁻ ix अपॉन 2। सिमिलरली अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, कॉस कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन कंपोनेंट बचेगा, बट वी विल टेक, यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम्स cos x, बट यहाँ पे क्या बचता है 2 टाइम्स i इंटू साइन एक्स, ओके। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या बचेगा, i भी ऐड हो जाएगा, i प्लस i, यू विल गेट 2i साइन एक्स। देयरफॉर साइन x क्या होता है, e⁻ix माइनस e⁻ix अपॉन 2 टाइम्स i, ठीक है। सो ये जो दो फॉर्मूले हैं इससे हमको क्या मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो आपको ये जो फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos x sin x, दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट वैल्यूज। सो अभी यहाँ पे हमने जो किया था ऑयलर्स फॉर्मूला में, वो जो x से हम लोग डिनोट करते थे वो x क्या था, रियल नंबर था। cos e⁻ix इज इक्वल टू cos ix प्लस i sin x, एक इसके लिए है, x जब रियल नंबर होता है या थीटा जब रियल वैल्यू होती है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट सेम हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक्सपांड कर सकते हैं। सो व्हाट डज वी सेइंग, expanding these formulas to the complex number. So for any complex number z, we can write on the similar line
cos z is equal to e raised to iz plus e raised to minus iz upon 2, and sin z is equal to e raised to iz minus e raised to minus iz upon 2 times I. ये दो फॉर्मूले आपको रिमेंबर करने हैं. ओके, यू हैव टू बाय हार्ट दिस टू फॉर्मूले. बाकी के फॉर्मूले आपको पता है. tan z क्या होता है? साइन अपॉन कॉस. तो साइन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डिवाइडेड बाय कॉस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. व्हाट डू यू गेट? ये 2 विल गेट कैंसिल्ड, ओनली आई बचेगा. सो साइन का वैल्यू क्या है? e रेज टू आई जेड माइनस e रेज टू माइनस आई जेड. 2 विल गेट कैंसिल, यू विल गेट आई वैल्यू रिमेनिंग अपॉन आई बचेगा. एंड देन cos z का वैल्यू क्या है? e रेज टू आई जेड प्लस e रेज टू माइनस आई जेड. सो साइन में क्या होता है? e रेज टू आई जेड माइनस e रेज टू माइनस आई जेड. कॉस में क्या होता है? e रेज टू आई जेड प्लस e रेज टू माइनस आई जेड. ओके, साइन में डिवाइडेड बाय 2i होता है, कॉस में डिवाइडेड बाय 2i नहीं होता है. व्हाई दिस इज सो? हमेशा याद रखो, कॉस पार्ट किसके साथ अटैच होता है? रियल नंबर के साथ अटैच होता है. साइन पार्ट किसके साथ अटैच होता है? इमेजिनरी नंबर के साथ अटैच होता है. इसलिए साइन में इमेजिनरी कंपोनेंट आएगा, कॉस में इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं आएगा. ओके, बाकी क्या है? सेक जेड क्या होता है? 1 अपॉन कॉस जेड, रिवर्स 2 अपॉन ई रेज टू आई जेड प्लस ई रेज टू माइनस आई जेड. कोसेक यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है सी एस सी जेड. कोसेक जेड क्या होता है? 1 अपॉन साइन. अगेन सेम, रिवर्स द फॉर्मूला ऑफ साइन. 2i अपॉन e रेज टू आई जेड माइनस e रेज टू माइनस आई जेड. कॉट जेड क्या होता है? कॉस अपॉन साइन. अगेन रिवर्स दिस फॉर्मूला. tan, इट इज आल्सो रिटन एज 1 अपॉन tan z. tan का फॉर्मूला क्या है? e रेज टू आई जेड माइनस e रेज टू माइनस आई जेड अपॉन i टाइम्स दिस. So you can write this particular equality. Okay, now we will come to the last part of our topic in this. You remember this identity? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Yes. यस सर. Yes, कैसे sir. प्रूव किया था ये? 12th में भी किए थे सर. बट कैसे किया था? Anyone remember how you prove this sin square z plus cos square z is equal to 1? Yes or no? नो सर. आपने इसके लिए पाइथागोरस का यूज किया था. यू हैव ड्रॉन द इक्विलैटरल, मतलब जो परपेंडिकुलर, एक एंगल जो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल. यू हैव ड्रॉन द राइट एंगल ट्रायंगल. उसमें एक वैल्यू लिया था थीटा. उसके थीटा के एंगल के अराउंड आपने कंप्यूट किया था. वो साइन थीटा क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी. कॉस थीटा क्या आएगा? बी सी अपॉन ए सी. एंड देन यू हैव यूज द पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. और वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने प्रूव किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. बट हम क्या बोल रहे हैं अभी? ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? कॉम्प्लेक्स एंगल है. मतलब आपको अगर मैंने z का वैल्यू 1 प्लस आई दिया तो भी आपको ये आना चाहिए साइन स्क्वायर 1 प्लस आई प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1. तो वो 1 प्लस आई का एंगल आप ले नहीं सकते ट्रायंगल में. सो व्हाट यू डू? यू विल यूज दिस आइडेंटिटीज. कॉस का वैल्यू क्या लोगे? e रेज टू आई जेड प्लस e रेज टू माइनस आई जेड अपॉन 2. साइन का वैल्यू क्या लोगे? e रेज टू आई जेड माइनस e रेज टू माइनस आई जेड अपॉन 2i. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. साइन स्क्वायर z, साइन का वैल्यू क्या है? e रेज टू आई जेड माइनस e रेज टू माइनस आई जेड अपॉन 2i, उसका स्क्वायर. और साइन और कॉस में डिफरेंस क्या है? ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. 2i के जगह पे क्या आएगा? 2 आएगा. e रेज टू आई जेड प्लस e रेज टू माइनस आई जेड अपॉन 2. ओके, नाउ स्क्वायर करो. स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एनीवन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके,
सो ई रेस टू आई जेड का स्क्वायर आपको पता है ए रेस टू एम, उसको अगर n पावर लेना है तो क्या होगा, पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. इट इज a रेस टू mn. सो दिस 2 पावर विल बी गेट एडेड टू द iz. सो a स्क्वायर क्या होगा आपका, e रेस टू 2iz. 2ab आपको पता है क्या है, -2ab, -2 इंटू e रेस टू iz इंटू e रेस टू -iz. सो ये 2ab होगा. देन अगेन पावर विल गेट अटैच टू द, ऑलरेडी जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, e रेस टू -2iz. अभी यहाँ पे 2i रेस टू स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4. व्हाट इज i स्क्वायर, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट. यस सर. यहाँ पे -4 आएगा. सिमिलरली इसमें करो, a स्क्वायर e रेस टू 2iz. पावर क्या होगा, अगर ऑलरेडी आपके फंक्शन को पावर है तो उसको क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर. e रेस टू iz का क्या होगा, e रेस टू 2iz. अगेन 2 टाइम्स ab, 2 टाइम्स ab क्या होता है, e रेस टू iz इंटू e रेस टू -iz माइनस e रेस टू 2iz. अभी दोनों के जगह पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को नेगेटिव साइन देंगे और सेकंड में साइन वैसे ही रखेंगे. ओके. और एक बात याद रखो कि ये जो वैल्यू है 2 टाइम्स e रेस टू iz, e रेस टू -iz, a रेस टू m, a रेस टू n क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में पावर गेट्स एडेड, राइट. e रेस टू iz प्लस e रेस टू -iz मतलब क्या होगा, e रेस टू iz माइनस iz, e रेस टू 0 हो जाएगा. एनीथिंग रेस टू 0 इस क्या होता है, 1 होता है. सो ये जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, 2 होगा. यहाँ पे भी ये जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि वो जो पावर है वो क्या होगा. और एक तरह से कर सकते हो, आई विल टेक दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे ही कर देते हैं. नहीं हो रहा. Just let me refresh. तो आपका क्या होता है, दो तरह से कर सकते हो, e रेस टू iz इंटू e रेस टू -iz. दिस कैन बी रिटन एज e रेस टू iz माइनस iz. दिस इज वन वे which is equal to e रेस टू 0 which is equal to 1. और आप क्या कर सकते हो, इट इज e रेस टू iz, अगर निगेटिव पावर है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और पॉजिटिव बन जाता है. e रेस टू iz अपॉन e रेस टू iz which is equal to 1. सो दोनों तरह में से कोई भी वे में कर सकते हो आप. सर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की है ना सेकंड वाले में. हाँ नहीं, सेकंड वाले में क्या है आपकी, अगर इंडेक्स निगेटिव है तो वो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है. ओके सर. राइट. अगर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में रहेगा, निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा. और डिनोमिनेटर का जो भी पावर है अगर वो निगेटिव में है तो न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव होता है, राइट. सो वो अप्लाई कर सकते हो आप. ठीक है. सो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा. ठीक है. अभी यहाँ पे जो माइनस साइन है वो मैंने न्यूमरेटर को लगा दिया. यहाँ पे पहले का फंक्शन का साइन था पॉजिटिव, उसको निगेटिव बना दिया. सेकंड का साइन था निगेटिव, उसको पॉजिटिव बना दिया. थर्ड का साइन क्या था, पॉजिटिव, उसको निगेटिव बना दिया. एंड देन सेकंड में एज इट इज रखा. सो वील ऐड ऑल द न्यूमरेटर थिंग्स बिकॉज डिनोमिनेटर का बेस सेम है. ऐड करो फिर माइनस ई रेस टू 2iz कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ 2 + 2 बचेगा विच इज इक्वल टू 4/4. 4/4 क्या होता है, 1 विच इज इक्वल टू RHS. Therefore we can write sin square z plus cos square z is equal to
1. Okay, so you can prove this any identity. What is, you know the different formulas. Sin 2z is equal to 2 sin z cos z. You can prove it using this particular identities. ये जो formulas है वो यूज करके आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो. What is 1 plus tan square z? 1 plus tan square z is equal to sec square z. You can prove it using this identity. LHS में convert करो, substitute करो, power find करो, you will get this identities. Okay, so any identities you can prove. whatever sin cos का आपने जो भी पढ़ा है वो सभी आइडेंटिटीज ऐसे प्रूव होते हैं. ओके, इन कॉम्प्लेक्स नंबर you have to convert everything into. After this hyperbolic functions we will see the conversion formulas between circular and hyperbolic, and उसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे कल लेक्चर में, so that we will get to know what is this identities. okay, सर ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है. हाँ, तो मैंने वही बोला आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आया ना तो ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. पोलर फॉर्म में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है, सब जगह ट्रिग्नोमेट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर में. ओके, ठीक है, लेट मी डाउनलोड द अटेंडेंस. ठीक है, ओके, देन विल स्टॉप हियर.